क्या होता है? वर्चुअल इमेज, द इमेज, अभी बताते हैं बेटा। लेट अस स्टार्ट बाय चैंटिंग ओंकारम 3 times. All of you join your hands, close your eyes and chant Om 3 times. साई राम। देखो आरुष, वर्चुअल इमेज द इमेज विच कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। जैसे एक प्लेन मिरर लो और प्लेन मिरर में आप अपना चेहरा देखो, तो ये चेहरा जो है तुम्हारा ये स्क्रीन पे कभी नहीं जा सकता, दीवार पे नहीं जा सकता। कोई हम ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर लगाएं, व्हाइट पेपर रख के देखें, नहीं जाएगा उसके ऊपर। ये मिरर के पीछे बनता है, राइट, मिरर के भीतर बनता है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है बेटा, है ना। और भी, लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। कैन यू सी द स्क्रीन? No, man. No, sir. हाँ, नो सर। No, sir. नाउ, Now it is Sir, the image is visible. या यस यस। visible. तो आप लेट अस बिगिन विद द वीडियो, है ना। सी द वीडियो, साउंड इज ऑडिबल? Yes, sir. थोड़ा तेज कर दीजिए. सर थोड़ा फास्ट, थोड़ा आप। हाँ हाँ, बढ़ा दिया मैंने। ओके, नाउ एनी क्वेश्चन, नोट डाउन बेटा, पूरा वीडियो देखो अच्छे से। Chaya and Utsav are very good friends. They study and play together. Chaya has a keen interest in science, and Utsav is always curious about learning new things. Once both of them were studying together in Chaya's room, but Utsav was not being able to concentrate much in studies that day. Suddenly, Utsav notices something on the mirror of the dressing table. What are you looking at in the mirror, Utsav? Chaya, I am thinking that how we are able to see our picture. I mean, our image in the mirror, whereas we don't see it in our water glass. Nice question. I know this much that it is somewhat related to the light. Let's go to the courtyard and do some experiments over there. Utsav, can you feel that we can see more clearly outside the house? I agree. The sunlight is much brighter than the light of the room's bulb. Absolutely correct. We are able to see due to light. Light is necessary to see things. When the light reaches our eyes after getting reflected by some object, then only we are able to see that object. Chaya, I did not get that. Light reaches to us after getting reflected back. But light rays go straight through the water and we are able to see inside it too. Also, we can see a little bit through water glass. Wait a minute. Chaya goes inside and brings back a glass full of water and 2 1 rupee coins. Utsav, look attentively. Chaya drops a coin in the glass filled with water and lifts the glass with one hand and the other coin in the other hand. Utsav, which coin can you see more clearly? The one in the glass or the other one in my palm? The one in your palm. Chaya closes her fist. And now? How can it be seen now? You have closed your fist. Now, can you see the glass of water? What are you talking about? How can I see it when you have covered the glass by your hand? What's up? Some things are transparent, while some are not transparent. The things through which light can pass completely are known as transparent. For example, water, clear glass, and many things made from plastics like water bottles. We can see through these things. We can see an object when light passes through it and reaches us after getting reflected back from it. Let's come to things through which light cannot pass.
are known as opaque objects. Like either bounces into another direction after hitting the objects or goes back. Chaya, I can understand a little bit now. Please explain it a bit further. Alright, look at those trees. Can you see their shadow? Shadow, that's you. But yes, I can see the shadow of the trees. Yes, the meaning of my name is shadow. Shadow of an object. Utsav, if you see attentively, you can see that the shadow of the glass of water is so light and we are almost unable to see the shadow of water. Whereas the shadow of a bird is so dark. Shadow is formed when an opaque object comes in between the path of light. Like you can't see shadows at the places where trees are coming in the path of the light. You can't see through such objects. Chaya, there are some things that I still can't understand. Like normal glass is transparent, but then how we are able to see our image in a mirror glass? Utsav, this question is a bit tough. How shall I explain it to you? Alright, let's take help from our science book. Chaya brings back a science book and opens it to read. Yes, I had forgotten this thing. Utsav, there are some objects other than transparent and opaque which are known as translucent objects. These are objects through which light can pass partially, like butter paper and frosted glass, etc. Okay, understood. But I still did not get the answer to my question. I am telling you, have some patience and stand in front of the mirror. Now look first. The light from the bulb hits you, then reflects back to the mirror and then gets reflected back once again on hitting the polished surface behind the mirror and finally reaches our eyes. And hence, we can see ourselves. In the very similar way, we are able to see the image of every object placed in front of the mirror. When light bounces back after hitting the objects, then this process is known as reflection of light. For understanding this, it was necessary for us to know about transparency and opaqueness of objects. Every object reflects light in different magnitudes. Transparent objects reflect the least amount of light, and opaque shiny objects reflect the most amount of the light. Translucent objects fall in between these two. These objects reflect almost all the light falling on it, so that we could see our image in it. Okay, got it. It means that the light passes through the glass but reflects from the shiny smooth surface behind it. Look, the back of the mirror is being polished by a shiny substance, which reflects all the light falling upon it. Chaya, I have understood. Probably this is the reason that we are able to see our image in the lot of shiny objects like shiny spoons and mouths. Of course, shiny substance reflect more light. Now one more question has crossed my mind. I have told you everything I knew. Yes, but I wanted to know that why do we see a smaller image of ours in a spoon? Utsav, even I don't know the answer to this question, but this is a nice question. Both of us will discuss this with our teacher. Till then, let's find out the answer of your questions in our book itself. Okay, beta. We have seen what are transparent objects, what are translucent objects, and what are opaque objects. Am I right? Yes, sir. हेलो हाँ बेटा है ना तो नाउ we can have some questions. Are you ready? Yes, sir. Okay, so let us have some questions, practice questions. These are very short answer questions, right? You should try and answer.
So one of you should become the monitor for the whole class. Okay, beta? Sir, may I ask? Sir, may I, Okay, teacher? okay. Let Sir, may I Arush ask? today. Let Arush answer today. On the other day, other one can be. Can a completely transparent object cast a shadow? No, sir. No. है ना? Because for shadow formation, what do we need? Sir, An opaque object. like, yes, sir. Three things are needed. Opaque object. Three things are needed for the formation of shadow. What are these three things? Sir, may I? Sir, a Yes. screen, a source of light, and an opaque object. Correct. So answer of this question will be no. है ना? No. Okay. Next question. How does light travel? Sir, in its rectilinear motion. In a straight line path. Light travels in a straight line path, and this property is Oh, called rectilinear propagation. Rectilinear propagation of light. So how does light travel? Light travels in a straight line, है ना? सीधा आंसर. Light travels in a straight line. ठीक है, इसके बाद मैं नाम लेकर पूछूंगा, फिर आंसर देना बेटा, है ना? सभी लोग याद ध्यान से देखो अपना अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट? What is a ray of light? Sir, what is the Yes, meaning sir. of ray? You Sir, have may you I heard answer? sun rays? नाम सुना सन रेज? नाम सुना? Yes, sir. बोलो. तो Sir, may I answer? हाँ बोलो आरुष. Sir, the ray of light is a light which comes from a source and go in an infinite distance. हाँ, very narrow beam of light is called ray of light. In rectilinear. देखो इधर मेरे पीपीटी देखो आप. ray of light. What do you mean by ray of light? A narrow beam of light is called a ray of light. Note down. A narrow beam of light. Oh पतली, बिल्कुल very very narrow beam of light जो सन से या किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आती है, that is called ray. RAY. आपने स्लाइड से कर दूं. आपने मैथ में पढ़ा होगा रे के बारे में, पढ़ा है? जैसे ये Yes, sir. सन, तो सन से रेज निकलेंगे इस तरह से, है ना? रे पढ़ा होगा आपने. A ray has one initial point and the other end can be extended up to infinity, है ना? या ये एक रे है. रे को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो OB, है ना? ये है रे OB. बी की तरफ जा रहा है तो उधर एरो लगेगा. तो नाम दे दें मैं AP. तो ये है रे AP. पी की तरफ जा रहा है ना? अच्छा, मैं ऐसे लिखूं अगर रे OB और एरो इधर लगा दूं तो सही है गलत है? इस फिगर के लिए, इस फिगर के लिए ये सही है गलत है? गलत. गलत है ना? और अगर मैंने ऐसे लिखा रे BO और एरो इधर लगाया तब अभी सही है गलत है? अभी क्या है, सही है गलत है? सही है. रे OB बोलेंगे, है ना? जिधर एरो है उस तरफ जाएंगे हम. गुड. रे में कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, अभी बेटा आपने देखा रियल इमेज वर्चुअल बता रहा था मैं. आप एक एक्टिविटी कर सकते हो घर में. आपके घर में हैंड लेंस होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है हैंड लेंस, Sir, है ना? तो ये हैंड लेंस आप हाथ में ले लो और एक कैंडल जला लो, और कैंडल लेकर हैंड लेंस लेकर आप दीवार के पास पहुंच जाए जहां पर व्हाइट पेंट किया है ना, या कोई पेपर लगा दो, है ना? कोई स्क्रीन मतलब की तरह काम करे, और हैंड लेंस को लेकर के कैंडल को थोड़ा दूर रखो. हैंड लेंस से देखो आप, तो दीवार के ऊपर कैंडल की उल्टी इमेज बनेगी. दिख रहा है ये आपको? दिख रहा है ना? फ्लेम कैसे उल्टा बन रहा है, और ये दीवार पे बन रहा है. दीवार स्क्रीन हमारा है, तो इस इमेज को क्या बोलेंगे? रियल या वर्चुअल? real image. रियल इमेज, है ना? और अगर आप इस हैंडलेंस को बहुत पास लाओगे, कैंडल के बहुत पास लाओगे,
तो आप देखोगे कि दीवार के ऊपर कुछ भी इमेज नहीं बन रहा है, बल्कि लेंस के अंदर आपको इसका इमेज दिखाई देगा और बिल्कुल वैसा ही सीधा दिखाई देगा, जैसा कैंडल का फ्लेम वैसे दिखाई देगा, दीवार पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इस समय जो इमेज बन रही है वो लेंस के भीतर बन रही है। तो कौन सा इमेज है ये? Virtual. Virtual. बहुत पास लाना होगा कैंडल को, कैंडल को बहुत क्लोज लाओगे लेंस के पास में। तो ये एक्चुअली ये जो लेंस है ना, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में दोनों इमेज बनता है, रियली बनता है और वर्चुअल बनता है ना। इस तरह मिरर भी होते हैं। मिरर तीन तरह के होते हैं बेटा, मिरर तीन तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं प्लेन मिरर, है ना, जो इसमें आप अपना चेहरा देखते हो, है ना। मैं दो नाम बताऊं? प्लेन मिरर, हाँ प्लेन Yes, मिरर। sir. और दूसरा होता है कर्व्ड मिरर, Convex. जो दो तरह का होता है। कॉनकेव मिरर, इसके अंदर का पार्ट धंसा होता है जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ये कॉनकेव मिरर है। और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट बल्जिंग आउटवर्ड होता है। यह है कॉन्वेक्स मिरर, यह है कॉनकेव मिरर, यह है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपका हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। ये कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर में भी आप कहीं भी खड़े हो जाओ, यहाँ भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, स्क्रीन पर नहीं जा सकता वो इमेज। लेकिन कॉनकेव मिरर में जब आप बहुत क्लोज हो, आप बहुत क्लोज खड़े होंगे तो आपका वर्चुअल इमेज बनेगा, लेकिन आप दूर रहेंगे तो इमेज स्क्रीन पर आएगा, उस समय रियल इमेज बनेगा। ठीक है, सो यू विल स्टडी ऑल दीज एंड वी कैन डू द एक्सपेरिमेंट इन द लैब आल्सो इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, लेट अस कम टू सम मोर क्वेश्चंस। और क्वेश्चन देखें, बोलो भाई। Yes, sir. होगा व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट? आंसर लिख लो। अ नैरो स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इज कॉल्ड, आपकी लैंग्वेज में अगर आपको भारी भरकम लग रहा है अ नैरो बीम ऑफ लाइट, तब ये लिख लो, अ नैरो स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। लिख लिया? आगे चले? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म हो गया? Okay, some more questions. Let us see. Let us some more questions. Some more questions. Yeah. Define reflection of light. Who will define reflection of light? Reflection of light. Angel, बोलो Angel. Reflection of light बेटा. Angel. Sir, may I? अतिशय, Atishay. हाँ अतिशय try. Yes अतिशय. When light falls on a shiny surface, the light rays bounce back. या करेक्ट है ना, ठीक है। इज आंसर द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, does the reflection of light from the surface similar to the bouncing back of a rubber ball after it strikes from a ball? बोलो बेटा। यस, वहां भी रिफ्लेक्शन ही होगा भाई, लाइट रबर बॉल से भी टकराकर तुम्हारे आंखों तक आएगी। यस, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस बाउंसेज बैक टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस आएगी। Why do objects in a room become visible even if sunlight does not enter into it? अभी आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप चीजों को देख पा रहे हो, क्यों? हाँ, although direct sunlight is not there in the room, but reflected light from the sun
enters into our room, and because of that we are able to see the objects, है ना। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है बेटा। सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर कमरे में आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट में पड़ रही है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आ रही है ना। गुड, आई थिंक, है ना। यू हैव नो डाउट ऑफ दिस चैप्टर। बुक का क्वेश्चन देख लें, बुक का क्वेश्चन देख लें बेटा। लेट मी लॉग इन अगेन, एक बार और लॉग इन करने दो, है ना। या let me log in again. Okay beta, so we have learnt about the whole chapter, so let us come to some more questions in the form of quizzes, right? So be ready to answer these questions. Yeah, there are 5-6 questions. Okay, so which type of image is formed in a plane mirror? Real image. Which is black. Which one? So C. अरे Real erect. वर्चुअल सर रियल इरेक्ट। रियल कैसे बनेगा प्लेन मिरर में? प्लेन मिरर इरेक्ट मतलब मतलब सीधा, जैसे आप खड़े हो तुम्हारा इमेज वैसे रहेगा, है ना। शुड बी बी। यस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इमेज that will be obtained in a pinhole camera. upside down. Upside down. upside down. Upside down. Okay, very good, very good, very good. What are the properties of the image found by a plane mirror? Image is virtual and erect. Image is at the same distance. Image is virtual and erect. इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। है ना, Yes. ठीक है। Next, which of these can form reflections? Plane अप mirror, इन होल कैमरा। Up in whole camera. reflection नहीं होता भाई। Up Still in whole pond water, camera. yes. Still pond door, pond water होना चाहिए, pond water होगा, pond water, right? सर स्टिल पॉन्ड डोर क्या होता है? वो वाटर होगा बेटा, स्टिल पॉन्ड वाटर, पानी होगा, वाटर होना चाहिए, और वाटर, पानी स्थिर है पॉन्ड में, वहां जब आप देखोगे अपना चेहरा दिखेगा, तुम इमेज दिखेगा आपका। ये सही किया था ना Up in whole camera में स्टोरी याद है? उस खरगोश ने हराया था उसको, लायन को, अभी सुनाऊंगा। विल एग्जिबिट प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोलो इसमें से कौन सा प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिखाएगा? मेरा ओके, नाउ सी द क्वेश्चंस एट द चैप्टर एंड बेटा। आपने बुक के क्वेश्चन देख लीजिए, सभी लोग बुक खोलो अपना अपना, है ना। सर पेज नंबर बताना पड़ेगा। पेज नंबर आपका निकालो, ये 113। सर चैप्टर 8 के जो 4 क्वेश्चन है वो सारे लिखने हैं क्या कॉपी में? हाँ बेटा, सारे। अभी देखो ये मेन पॉइंट कौन पढ़ के सुनाएगा? सर वैशाली है क्या? सर मैं आए। सर 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 मैं पढ़ूं समरी? सर समरी मैं पढ़ूं? सर समरी में पढ़ूं? सर मैं आई। सर मैं आई। वैशाली जाकर। सर मैं दर्द कापरा। लेट वैशाली रीड, वैशाली को पढ़ने दो। हाँ वैशाली। सर चैप्टर 8 में चारों क्वेश्चन कॉपी में करने हैं। हाँ जी, वैशाली पढ़ना शुरू करो। सर समरी। हाँ समरी।
Summary. Opaque objects do not allow light to pass through them. Good. Second, transparent objects allow light to pass through them and we can see through these objects clearly. Very good. Third, translucent objects allow light to pass through them partially. 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 थोड़ा है ना? Fourth, shadows are formed when an opaque object comes in the path of light. Very good. Fifth, pinhole cameras can be made with simple materials and can be used to image the sun and brightly lit objects. Good. Sixth, mirror reflection gives us clear images. Seventh, images were different from shadows. Very different. Eighth, light travels in a straight line. गुड. अब क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको रीअरेंज करना है सो दैट अ सेंटेंस बनेगा, है ना? इस बॉक्स को आगे पीछे करके अरेंज करो तो एक सेंटेंस बनेगा. तो बताओ पहले कौन सा रखोगे, इसमें से कौन सा बॉक्स पहले आएगा? ओपे सर थर्ड सर बॉक्स. OPAQ वाला. सर थर्ड बॉक्स. ये वाला पहले आएगा. फिर कौन आएगा? दिस वन फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, है ना? शैडो. लास्ट में ये आएगा, OWS लास्ट में आएगा. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? Opaque objects हाँ, Big objects make shadows. करेक्ट. Opaque objects make shadows. Opaque objects make shadows. यहाँ देखिए आप, आंसर हो जाएगा ये. Opaque objects make shadows. ये बनेगा ऐसा आंसर. Opaque objects make shadows. सेकंड क्वेश्चन देखो. क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, और फिर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस. 2 बार करना है क्लासिफाई. एक बार करना है ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट में, और एक बार करना है ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस में. तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्या क्या? एयर, वाटर, अ पीस ऑफ रॉक. तो बताइए इसमें से ओपेक, है ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट लिखते जाना, और फिर ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस लिखते जाना. तो इस तरह से कॉलम बना सकते हैं आप. ऑब्जेक्ट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस. तो बताइए एयर को क्या बोलेंगे? एयर इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट. ल्यूमिनस की नॉन ल्यूमिनस? सर non-luminous. सर नॉन ल्यूमिनस. एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूँ. All of you do not open the mic. Is air always transparent? नो सर. नो सर. How can you say this? सर क्योंकि अगर हम एयर के साथ वेपर मिला दे तो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा. हाँ, जैसे आज सुबह उठा होगा आपने, मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे देखा होगा आपने, लाइट रहते हुए हम थोड़ी दूर तक देख नहीं पा रहे थे फॉग की वजह से. तो अगर एयर फॉगी हो जाए, और फॉगी होने का कारण वही हुआ व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ मोर वाटर वेपर, कंडेंस वाटर वेपर आ गया उसमें, तो हमें दिखाई नहीं पड़ता आगे. उस समय क्या बन जाता है? उस समय एयर हो जाता है ट्रांसलूसेंट, थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है. नहीं बेटा, उस समय जब फॉग लग जाता है तो थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, बहुत गौर से देखने पर. अच्छा, कभी कभी एयर ओपन भी हो जाता है, कभी फील किया आपने? यस सर. जब कब होगा ऐसा? अगर डीप स्मोक आ जाए, एयर में बहुत सारा स्मोक मिल जाए, तो आप आर पार नहीं देख पाओगे, है ना? या यस सर. या डार्क क्लाउड आ जाए एयर में, तो भी उसके आर पार नहीं दिखाई देता हमें, है ना? तो अगर कोई सवाल पूछेगा इज एयर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? यस या नो? नो. और फिर आप उसको एक्सप्लेन लिखा गया, एक्सप्लेन ऑल्सो, एक्सप्लेन भी कर देना, है ना?
ठीक है बेटा, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, आपको दिखा रहा हूं मैं। अगर इफ यू डू नॉट अग्री बताना। वाटर ट्रांसपेरेंट नॉन ल्यूमिनस, लेकिन ये वाटर भी कभी कभी हो जाएगा ओपेक या ट्रांसलूसेंट, अगर कुछ मिला दोगे तब वाटर में, है ना बेटा। अभी क्लियर वाटर मान लो, सिंपल प्लेन वाटर है तो पीस ऑफ रॉक क्या होगा, ओपेक नॉन सर ल्यूमिनस। ओपेक और नॉन लुमिनस। A sheet of Opaque or non-luminous. mirror opaque non-luminous. Non-luminous. Bulletin board opaque non-luminous. Opaque, non-luminous. A sheet of polythene translucent. Translucent non-luminous. Non-luminous. Opaque non-luminous. सीधी तरफ Opaque, दिख रहा non-luminous. है ना। हाँ सर सब non-luminous है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Smoke translucent non-luminous. Translucent. A sheet of plain glass transparent Transparent, non-luminous. fog translucent The translucent and non-luminous. Non-luminous. Piece of red hot iron. Opaque, बहुत opaque, गर्म करो ना, थोड़ा लाइट निकलेगा उससे। an ठीक है, umbrella. Opaque, नॉन ल्यूमिनस। Opaque non non-luminous. luminous A light and lighted fluorescent tube. fluorescent Opaque tube. non luminous. Opaque, luminous. A wall opaque tube. व्हाट Opaque. इज फ्लोरोसेंट ट्यूब? सर मैं बताऊं? हाँ, फ्लोरोसेंट का मतलब क्या होता है? सर एक कोई चमकने वाला पदार्थ होता है। हाँ, तो ट्यूब लाइट जो है ना, ये कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट है। आप बहुत देर ट्यूब लाइट जलने में गर्म नहीं होता, लेकिन बल्ब को आप नहीं पकड़ पाओगे। बल्ब को आप नहीं पकड़, लेकिन ये पकड़ पाते हैं। हाँ सर व्हाट इज फ्रोस्टेड ग्रास? फ्रॉस्टेड, यस सर। फ्रॉस्टेड ग्लास का मतलब होता है ग्लास के ऊपर वाटर वेपर अगर कंडेंस हो जाए तो उसको बोलते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास। ग्लास के ऊपर पानी की बूंदें जमा दो, जैसे ग्लास का टुकड़ा लो, उसको फ्रिज में रख दो और थोड़ी देर के बाद लगभग 10-15 मिनट के बाद उसको बाहर निकालो, तो वो पूरा पूरा साफ साफ दिखाई नहीं देगा, उसके ऊपर पानी की हल्की सी परत बन जाएगी, है ना। तो फ्रॉस्टेड हो गया, यानी उसके ऊपर आइस जम गया बेटा। ग्लास के ऊपर अगर आइस जम जाए तो उसको बोलते हैं फ्रॉस्टेड। ठीक है, जैसे ऐसे ग्लास ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ग्लास के ऊपर अगर हम वाटर वेपर डाल दें कंडेंस होने के लिए तो वो ट्रांसलूसेंट बन जाएगा, या उसको पत्थर पर रगड़ दो, घिस दो, तब भी वो ट्रांसलूसेंट बन जाता है। ओके, ये ल्यूमिनस होगा। यस सर। वॉल ओपेक नॉन ल्यूमिनस, शीट ऑफ कार्बन पेपर ओपेक नॉन ल्यूमिनस, द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर ट्रांसलूसेंट होगा। Translucent or luminous? ठीक है, शीट ऑफ कार्डबोर्ड ओपेक नॉन ल्यूमिनस। Opaque, non-luminous. A lighted torch. Opaque, luminous. A sheet of cellophane, cellophane पेपर आता है, पॉलिथीन के जैसा रहता है। Transparent, non-luminous. वायर मेश, तार की जाली, Translucent. वायर मेश, है ना। ट्रांसलूसेंट नॉन ल्यूमिनस। केरोसिन स्टोव ओपेक, लेकिन जलता हो रहेगा तो ल्यूमिनस। Luminous. ओपेक है, Opaque, non-luminous. ओपेक ल्यूमिनस। Luminous. Luminous. Opaque. Moon. Opaque, non-luminous. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप ऐसे खड़ा करके देखोगे तो जो शैडो बनेगा वो अलग बनेगा, ऐसे करके देखोगे तो शैडो अलग बनेगी। बताओ क्या हो सकता है, कौन सा होगी? सिलेंड्रिकल शेप होगा। जो सिलेंड्रिकल शेप का आपका शैडो सर्कुलर भी बनेगा और रेक्टेंगुलर भी बनेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सिलेंड्रिकल शेप। ये देखो, सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है तो शैडो कैसा बन रहा है देखो, लेकिन इसी को अगर ऐसे पकड़ लेंगे तो शैडो रेक्टेंगुलर बनेगा। दोनों फिगर भी बनाओगे, ठीक है। ओके सर, बनाना। दोनों फिगर ही बनाओगे। ये देखो, जब हम ऐसे करके पकड़ेंगे, लाइट इधर से आ रही है तो ये आपका ऑलमोस्ट सर्कुलर शैडो बनेगा, लेकिन अगर आपने टाइम इज मॉडल को ऐसे पकड़ा है, सर टाइम इज ओवर। लाइट इधर से आ रही है
टाइम इज रेक्टेंगुलर शेडो बनेगा आपका। ठीक है सर टाइम इज ओवर। हाँ बेटा टाइम इज ओवर। तो आप पूरा कर लेना बेटा, अभी नहीं ओवर हुआ है, 11:15 ओवर होगा। In a completely dark room, if you hold up a mirror, can you see your image? We have discussed this earlier also. No, because there is no light which will be reflected from my face and it will go into the mirror, and after reflecting from mirror it will come into my eye. So there is no light, so there will be no reflection of light. ठीक है? So there are 4 questions and you have to do all these. ठीक है बेटा? Still if you have any doubt now, tell me. 4 सवाल है, 4 सवाल कर लीजिएगा। एक्टिविटीज को पढ़ने की कोशिश करना, इसको लिखना और एक मॉडल बनाना टेलीस्कोप का। ओके माय डियर, स्टिल एनी क्वेश्चन? नो सर। No, sir. हाँ बोलो बेटा। सर जो हम लोग ये पेरिस्कोप बनाएंगे तो इसमें जो हम लोग मिरर लगाएंगे वो कितने डिग्री पर लगाना होगा? 45 डिग्री पर लगाना, 45 डिग्री पर ऐसे झुका रखना, 45 डिग्री लगभग, सीधा नहीं रखना। Sir, telescope. 45 पे ऐसे, एक मिरर ऐसे सर रहेगा। टेलीस्कोप का भी मॉडल बना सकते हैं? हाँ बनाइए, बना सकते हैं, अच्छी बात है। Sir, telescope model है assessment का। हाँ, उसमें आपको लेंस लगेगा बेटा, टेलीस्कोप बनाने के लिए लेंस का यूज करना पड़ेगा। लेंस है तुम्हारे पास? सर ले लेंगे उस। हाँ, कोशिश करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बना। इट्स गुड। ओके सर। Sir, model है क्या? हाँ अगर बनाना हो तो बना लो सर, ऐसा करो। हाँ हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। ओके बेटा, करें। सो Yes, sir. है ना। लेकिन अगली क्लास में मैं पूछूंगा कुछ डिफिनेशंस वगैरह, नाम लेके पूछूंगा, बताना मुझे फिर, है ना। ओके सर। तो रिवाइज द चैप्टर वेरी केयरफुली। चलो अभी कौन बताएगा एक, है ना। पहले आप आंसर मत बोलना। टेल मी वन डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शैडो और इमेज में एक डिफरेंस। हिमांशु, हाँ हिमांशु बोलो। सर शैडो का कलर सर ब्लैक होता है और सर जो इमेज का कलर होता है सर वो कलरफुल में मल्टी उसमें आता है। द ऑब्जेक्ट इज कलरफुल। इमेज इज मल्टी कलर हाँ, एंड शैडो इज डार्क। शैडो ऑफ सर an object is always dark, but but image of an object may be colorful if the object is colorful, है ना। हाँ बोलो देवांश। सर जो हमारे रियल इमेज होगा उसमें हमारे आईज नोज सब कुछ दिखेगा, शैडो में सिर्फ उसका वो मतलब आईज नोज नहीं दिखेंगे सर, जो हमारा फेस है उसका शेप दिखेगा। हाँ, उससे हम कुछ अंदाजा लगा लेते हैं कि किसका आ रहा है ना, थोड़ा सा पता चलता है। बट इमेज से तो कंप्लीटली मालूम चल जाएगा कि हु इज देयर, है ना। बट शैडो से ओनली वी कैन हैव सम इन्फरेंस, है ना। और आप अपने उंगलियों का यूज करके कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ शैडो बना सकते हैं, है ना, दीवार के ऊपर। आप कोशिश करना, एक्सपेरिमेंट तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, देखो। यस सर, सर मैंने बनाया है। ये देखो, एंजॉय करना इसको, एक्टिविटी को। या दिस वन, शैडोज ऑफ एनिमल्स हिडन इन योर हैंड। अपने हाथ से अलग अलग एनिमल का शैडो बना सकते हो, ऐसा लगेगा कि वो बन गया, है ना। सर मैंने बनाए थे। वेरी गुड। सो आई थिंक, है ना, सर मैंने भी बनाया। we have completed our work, right? So shall we conclude by chanting Shanti Path, or still you have any question? No question. So let us chant Shanti Path. Shanti, Shanti, Shanti. Sairam beta. सर थैंक यू।
Okay. Saira ma'am, thank you sir. Bye. Saira ma'am, thank you sir. Bye sir. Salam sir, thank you sir. Sairam sir and thank you sir. Okay, beta. Leave the class now. Sai Ram.